ओके, कल का लेक्चर मिला था आपको? आई हैव सेंट। गुड। So we continue the today's lecture. We are seeing that discussing the convergent behavior of sequences. Okay. Now we write the next question. We say that the question is like this. Show that the sequence an where an is n square 5 divided by 4n square plus, okay, converges to where it should converge? Yes, it converges to 1 by 8. Which question? Yeah, it converges to 1 by 4. Okay, we have to prove it. So we prove it by definition. Okay, so let epsilon greater than 0 arbitrary, ठीक है, कोई भी पार्शियल नंबर ले सकते हैं. Now I write an minus 1 by 4, and this is basically n square 5 4n square and minus 1 upon 4. Okay, so first I have to simplify it so that I can make it less than epsilon. Okay, now I can write it. This is 4 into 4n square plus n, and this is 4n square plus this is 20 minus 4n square minus n. Right? There, students. And this is equal to, this is, I think, 4n square cancel out, so we are left with this. Okay, this is equal to I say 20 minus n, right, divided by 4 into 4 n square plus n, and this is mod, absolute value. And in between mod, I can also write it as n minus 20, doesn't matter in mod. Can I write like this? 4 n square plus n. Why? Because n minus 20 is same as 20 minus n. नेगेटिव का भी मान सेम आता है, ठीक है. And I can say this is less than equal to, first you see numerator, can I say n minus 20 is less than n? n नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होंगे. Can I say n minus 20 is less than n? Yes, बोल सकता हूँ बच्चा. What is n? N is natural number. N is natural number starting from 1 to 3, right? So it is less than
एंड सेम इन द डिनोमिनेटर, हम अपनी मर्जी से इसमें देखो, ये हर एक बच्चे का अपना एक फिक्स रूल होगा, हमें फर्स्ट टर्म से ही काम चल जाता है। डिनोमिनेटर को जितना छोटा करेंगे ये उतना फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो 4 4 जा 16 and square. Can I write like this? ठीक है चलो, and this is equal to 1 upon 16 n. ठीक है, now if we choose n naught such that we choose n naught such that, कैसे चूज करेंगे, क्या समझे n naught? हाँ, what you say here, जहाँ पे देखिए ये जो हमने n-20 लिखा है, इसको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कैसा होगा। देखिए n-20, अगर n का वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो n-20 आएगा -18, so it can be 18. You're getting the point? So what I should do, I think I should take here, if my this n is greater than equal to 20. If n is greater than 20, then n-20 is either 0 or positive number, right? Then mod of 20 minus n is equal to n-20, right? I have to make it n हमारा, देखो अगर n 20 से छोटा नंबर होगा तो 20, तो मैं अब n को 2 का वैल्यू ले लो, सपोज मैं जहां पे बताता हूँ, सपोज योर n is 2, then n-20 is -18, so mod of -18 is 18, so then I can, n की अगर n से छोटा तो it can be 18 upon 16 n square, नहीं, right friends? So you may get different value for values less than 20, but if it is greater than 20, definitely if n is greater than equal to 20, then this is less than equal to n. Otherwise this cannot be less than equal to n. You getting my point, students? फिर बता रहा हूँ, देखो बच्चा, जहां पे n-20 जो है, दिस इज जहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी को आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, अदरवाइज मैं इसको लेस देन n नहीं बोल सकता, क्योंकि अगेन आई गिव ए रीजन हियर, तो ध्यान से समझिए, this is n-20 is less than equal to n if and only if n is greater than equal to 20, otherwise not. Do you agree? ठीक है ना?
-2 आएगा, तो वो -2 आएगा ना, वो एन से देखो, आप कह रहे हो हम एन को भी देते हैं 18, देन इट विल बी 18 minus 20 which is equal to -2 and which is less than not less than n n को क्या रखा आपने 18 नेगेटिव तो आ रहा है जी, चल जाएगा जी, भी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना, क्योंकि हम नंबर को छोटा कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है बच्चा, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको, अब जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, देखिए प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम मॉड लगाने से हो रही है। सी n-20, नाउ आपने बोला 18 वैल्यू दे दो, हमने 18 वैल्यू दे दिया, जैसे हम n को 18 के हम n को 2 लेते हैं, सभी के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, और n इज इक्वल टू 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू n, यही इक्वेशन हमारा, तो इट विल बी 2 minus 20 less than equal to 2, right? So this is mod 18 less than equal to 2, so this is 18 less than equal to 2, which is not possible. तो जो 1 से लेकर 10 तक नंबर होंगे वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट। अगर सिंपल n-20 होता फिर तो प्रॉब्लम नहीं, बट हियर इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट? तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर आता है, तो हमें नेगेटिव साइन निकल जाता है, हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, राइट? सो n ग्रेटर देन इक्वल टू 20 रखना पड़ेगा, तभी हम ये कंडीशन लगा पाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने फिर मॉड का वैल्यू n-20 हो गया, और n-20 जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसमें कंडीशन की मुझे जरूरत फिर नहीं रह जाएगी, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस, n-20 अपॉन 4n² प्लस n, मॉड नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि नीचे पॉजिटिव नंबर है, जे भी नंबर पॉजिटिव हो गया n ग्रेटर देन इक्वल 20 के लिए, तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं पड़ी, देन आई कैन से इट इज लेस देन इक्वल टू n अपॉन 16n²। देखो मैथ में ये नहीं है, सब चीजें ऐसे एक रूटीन वे में चली जाएंगी और आप कंक्लूजन पे आ जाओगे, बीच में प्रॉब्लम आती है, वो सोचनी पड़ेगी आप, ठीक है? तो प्रॉब्लम किस पे आई? 20 पे, राइट? ठीक है जहां तक? नाउ वी चूज n सच दैट, अब ये जो n चूज करेंगे, ये n आपका कैसा होना चाहिए, दिस इज इशू। अब हमने 20 को छोड़ दिया ऊपर, राइट? बेसिकली हम 1/16 n के लिए लिखते हैं, और जहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, सच दैट दिस एंड नॉट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन? मैक्सिमम ऑफ 1/16 जहां 20, जिससे मैंने जो नेचुरल नंबर छोड़ दिए उसको साथ लेना पड़ेगा। देखो अगर 1/16 से छोटा हुआ तो नेचुरली ये जो टर्म है हमारी ऊपर लिखी हुई, ये टर्म दिस इज आल्सो लेस देन 20 बोल सकते हैं हम, है ना? तो इन दोनों में जो बिग नंबर होगा आपको, आपका एन नॉट उससे बड़ा होना चाहिए, उससे क्या होगा? देन we will have what we will have this equation, जहां से शुरुआत किया था, n² प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4n² प्लस n माइनस 1/4, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/16n, है ना? इससे छोटा है, ठीक है? तो n हम चूज कैसा करेंगे? देखो मेरी बात आप फिर समझो, ये कंडीशन 1/16n की कब एग्जिस्ट करती थी? जब आपका n ग्रेटर देन 20 होता था, नहीं? देखिए ये स्टेज कब आएगी? व्हेन दिस n, जे भी नेचुरल नंबर है ना, जे भी इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए ना,
n ग्रेटर देन 20, इस कंडीशन, ये कंडीशन तो रखनी पड़ेगी जहां भी आपको, नहीं, क्योंकि आपको जो इनइक्वालिटी जो मिल रही है, दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 20। सो जो n नॉट आप चूज करोगे वो भी इस 20 के आगे होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आएगी ना 1/16 n वाली। बच्चा मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? दिस कंडीशन मैं आपको फिर बताता हूं, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो आपने ऊपर लगाई है, सॉरी, दिस कंडीशन, हियर, नाउ दिस कंडीशन शुड बी एग्जिस्ट हियर आल्सो ना, नहीं? क्योंकि मैं जहां पे बोलूं एन कोई भी, एन नॉट कोई भी ले लूं, लेकिन 20 से नीचे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी को ना, है ना? क्योंकि जे एन नॉट भी 20 से ऊपर होगा तभी तो ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? क्योंकि जो हमने ऊपर जो इक्वेशन सॉल्व करा था, जहां हमने कंडीशन लगा दी थी एन ग्रेटर, ओनली देन वी गेट दिस वैल्यू, तो वो कंडीशन तो एन नॉट पे भी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये 1/16 हमें कहाँ मिलेगा? तो 1/16 तो तभी मिला हमें जब हमारा एन नॉट ग्रेटर देन 20 था, इसलिए तो 1/16 n और 20 हो सकता है, 1/16 n जो है 20 से बड़ा हो, लेकिन जो n नेचुरल नंबर बड़ा तो दिख नहीं रहा, इसलिए हमने ये दोनों साथ में रख दिए। तो एन नॉट आपका 20 से ऊपर होगा, ठीक है, तभी आपको ये कंडीशन जहां पे एग्जिस्ट करेंगी और आपको मिलेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो देन दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस कंडीशन, राइट? जहां मैंने थोड़ा गड़बड़ की है मुझे लगता है, ये मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि वो एप्सिलॉन रखना था हमें। कैन आई से लाइक दिस? देखो ये मैंने ये 1/16 एप्सिलॉन क्यों रखा, मैंने ये कैलकुलेशन कर दी है, देखिए मुझे क्या चाहिए था, 1/16 n नॉट लेस देन एप्सिलॉन चाहिए था, राइट? ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो इट मीन्स आप एप्सिलॉन और इसको इंटरचेंज करेंगे तो आएगा 1/16 एप्सिलॉन, जहाँ पे एन नॉट, तो एन नॉट ग्रेटर देन दिस, ये है कि हम जो कंडीशन है जो पहले अलग से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? ये जो नंबर है इसको लेस देन एप्सिलॉन रखना, जहां से एन का वैल्यू मिल जाएगा, और एन नॉट को हमने इसके ऊपर रखना, राइट? So and this is your less than epsilon for all n greater than equal to n naught. So this implies, therefore this sequence of numbers converges one by two. This is a, इस डेफिनेशन को प्रूव करना थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे यू कैन डू इट, ठीक है? एक आपको एक्सरसाइज मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आप लोग घर में करोगे इसको। क्वेश्चन इज, show that the sequence an where this an is converges to 4/3, ठीक है? You have to try it at home. This is exercise for you people. स्टूडेंट्स ठीक है, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट इज
This is very important result of this sequences, convergence sequences. Basically theorem, but I'm writing everything in the form of question. Question is, show that a convergent sequence has a unique limit point. As a unique limit point. Unique limit point means अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो नेचुरली लिमिट पॉइंट मिलेगा, और जो लिमिट पॉइंट मिलता है वो यूनिक होता है, मींस एक ही होगा। किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका लिमिट पॉइंट एक ही होगा। तो इसका हम जब प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल सपोज that we take the convergence sequence and we suppose it has two limit points, and then we read some contradiction, or we show that these two limit points are basically same limit points, ठीक है। तो suppose the sequence, suppose ऐसे लिखते हैं, we suppose that a convergent sequence an has two limit points। ये क्या बोला है, हम टू लिमिट पॉइंट्स ले लेते हैं, से ए एंड बी, मान लेते हैं इसके दो लिमिट पॉइंट है, क्या है, ए और बी। अगर ये दो लिमिट पॉइंट होंगे तो नेचुरली डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, राइट। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन आई से फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट, थोड़ा स्कोर सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक अलग अलग कैटेगरी लेके आप इसको कर सकते हो। देखो दोनों लिमिट पॉइंट है, दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ए और बी अलग अलग है ना, तो इनके लिए जो स्टेज आती है एन नॉट वो अलग अलग होगी। तो इसलिए एक के लिए मैं n1 लिख देता हूं, दूसरे के लिए मैं n2 लिख देता हूं, राइट। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट सॉरी फॉर epsilon greater than 0 there exist positive integers I write n1 and n2, ठीक है, दोनों डेफिनेशन मैंने इकट्ठी कर दी, नहीं तो दोनों को अलग अलग करना था। सच दैट जब पहला लिमिट पॉइंट होगा हम लिखेंगे ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। देखिए जहां पे एप्सिलॉन अपॉन 2 लिखा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, we can epsilon is any positive number however small, but in some conditions as per our requirement to make the calculation simple we can take epsilon by 2, epsilon by 3, even epsilon by 10, any number. Why? Because epsilon should be positive, if epsilon is positive epsilon by 2 is also positive, तो इसमें कोई आपको हार्म नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड an minus b less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n2, ठीक है, जहां तक समझ आया आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है बच्चों की यार, क्या बात है आज? तो ठीक है, ठीक, आ गई। तो नाउ सी
जो आपका, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, आई नेम इट इक्वेशन 1, आई नेम इट इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 holds for n greater than equal to n1 and equation 2 holds for n greater than equal to n2. सपोज हम नंबर लाइन में ड्रा करते हैं, दिस इज n, दिस इज n. ठीक है, तो n greater than n1 का मतलब क्या हुआ, मूविंग दिस वे, मूविंग दिस वे इक्वेशन 1 होल्ड करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड n greater than n2 मींस मूविंग दिस वे, n2 के आगे आपकी इक्वेशन 2 होल्ड करती है. तो दोनों इक्वेशन ऐसा कब होल्ड करेंगी, दोनों में से दोनों, कोई ऐसा रीजन है जिसमें दोनों इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं? कैन यू सी फ्रॉम द पिक्चर? n2 से आगे है ना, दोनों हो रहे हैं. मीन अब और सिंपली देखना, आप इसको 5 लिख लो, इसको 10 लिख लो. जो n ग्रेटर देन 5 के लिए है वो n ग्रेटर देन 10 के लिए नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 5 के बाद 6 7 आता है, वो ग्रेटर देन 10 में नहीं आएगा. जो ग्रेटर देन 10 के लिए है वो ग्रेटर देन 5 भी आएगा, है ना. तो कॉमन रीजन कब आएगा, जो दोनों में बड़ा नंबर है ना स्टूडेंट्स, राइट. सो व्हाट आई डू, ये आपकी मैंने रहने देता हूँ लिखा हुआ आप लोगों की समझ के लिए. दिस इज जस्ट रफ वन. So now I can say let n naught is maximum of n1 and n2, तो दोनों में बड़ा है. Then for n greater than equal to n naught, both equations है ना 1 and 2 holds, दोनों होल्ड कर जाएंगी ना. ठीक है, so therefore n greater than equal to n naught. ठीक है, n greater than equal to n naught, I write this mod of a minus b. ठीक है, and I can write it as a minus an plus an minus b. लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, make it a and make it b. This is less than equal to a minus an plus an minus b, which is again equal to an minus a plus an minus b. सिंपल, थोड़ा कैलकुलेशन करा. ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, इसको आप जहां मिटा दो, इसको बाद में लिख देते हैं. ठीक है, तो नाउ दिस. ठीक है, नाउ दिस इज लेस देन epsilon by 2 plus this is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to, okay, for all n greater than equal to n naught, जो हमने मैक्सिमम लिया हुआ है. ठीक है, so this implies mod of a minus b is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. ठीक है, now this is less than epsilon, but I can say since epsilon greater than 0 is arbitrary. क्या है ये, this is arbitrary. So taking epsilon approaching to 0, okay, we get, देखो हम बोलते हैं ना however small, arbitrary है ये. however small में 0.0000001 भी आ जाता है, so that is almost 0, right. so taking it approaching to होना और equal to होना में फर्क होता है बच्चों. तो जब ये 0 को अप्रोच कर गया तो आपका a, and thus we get a is equal to b.
राइट। सो दिस वे, और भी इसके प्रूफ है, प्रूफ करने के, ठीक है। तो ए और बी आपका इक्वल आ जाएगा। वाई? क्योंकि ये ए मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन है एप्सिलॉन से, और ये अप्रोचिंग टू जीरो है, और ये से छोटा है, तो ये फिर ए इक्वल टू बी ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन इज बिगर देन जीरो, राइट। सो इस तरह से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं बचा लोग? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन से, इंपॉर्टेंट टू रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस जो हम आज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द सीक्वेंस an comma sequence bn, right, and sequence cn satisfy the condition। क्या कंडीशन है? कंडीशन इज दिस: an less than equal to bn less than equal to cn for all, I write here, for all n belonging to natural। मतलब सीक्वेंस कैसा है कि an का वैल्यू, bn का वैल्यू an और cn के बीच में लाई करेगा, इस तरह का आपका सीक्वेंस है तीनों। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ना सर? एनी एग्जांपल स्टूडेंट्स? एनी एग्जांपल? एंड लिमिट n tends to infinity an is equal to limit n tends to infinity cn is equal to l। और an का और cn का लिमिट क्या दे दिया उसने? l। और bn इन दोनों के बीच में लाई करता है। देन लिमिट n tends to infinity bn is equal to, क्या होगा लिमिट ऑफ bn? ये इन दोनों एक से, हाँ जी, हाँ। तो लेकिन जो उससे bn से नंबर छोटा है उसका लिमिट भी एल आ रहा है, जो bn से नंबर बड़ा है उसका लिमिट भी एल आ रहा है, और दोनों का ऐसा आता है तो b का लिमिट भी एल ही आना चाहिए। ठीक है, इस थ्योरम को एक और नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। मुझे सैंडविच बन गया ना, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, सैंडविच बन गया जी आप लोगों के लिए, है ना? तो दो लेयर, अपर लेयर लोअर लेयर का लिमिट पॉइंट सेम है, तो सेंटर लिमिट का भी आपका वो सेम होगा। इस बेस पेज को नाम दे दिया सैंडविच थ्योरम। ठीक है, प्रूफ दो का लिमिट पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन दी गई है। प्रूफ बहुत सिंपल है इसका, थोड़ा सा लॉजिक लगाना हमने। सिंस आई राइट, सिंस लिमिट एंड टेंस टू दिस, अब आपको एग्जाम में इसकी जगह कन्वर्जेंट भी लिखा आ सकता है। ठीक है, दिस, सो देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exist, okay, there exist and not belonging to n such that
such that En minus L is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. ओके, इसको अब देखो यहाँ पे n भी मुझे लगता है आपको एक की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 होंगे, हम जहाँ पे इसको n1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चाहिए, वहां n1 n2 कर, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था, l माइनस एप्सिलॉन an इज लेस देन इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन। ज्यादा आप लोगों को राइट, जहाँ पे इस इक्वेशन का बड़ा रोल है, क्योंकि जो 3 इक्वेशन है जहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने देखो जहाँ पे इनइक्वलिटी फॉर्म में दी है ना, इस फॉर्म में, तो इसलिए हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ये आपका आ गया इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको जहां से मिल गया, तो आई नेम इट नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आल्सो लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी Cn is equal to L, so है ना, so therefore for every epsilon greater than 0 there exists say n2 belonging to n, okay, such that I can say that is Cn minus L less than epsilon for all n greater than equal to ऊपर लिखा हुआ है n, ठीक है। दिस इंप्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Cn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब मैंने जब दोनों कंबाइन करनी है तो मुझे n कौन सा चाहिए, अब दोनों इक्वेशन इकट्ठी होल्ड कर जाएं, तो उसके लिए मुझे वही द्वारा करना पड़ेगा, लेट n नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, n1 and n2, then इक्वेशन 1 मैंने नाम दिया, ऊपर नहीं दिया, I write there number 1, this is number 2, right, then equation 1 and equation 2 holds simultaneously, this is a good word, simultaneously or n greater than equal to n naught, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ कंबाइन करना है। नाउ यू सी हाउ वी डू दिस, ठीक है। सो नाउ फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये ले लिया ताकि दोनों इक्वेशन इकट्ठी लगा सकें, ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट वी राइट, अब लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो सीक्वेंसेस दी है इस तरह की दी है, देखिए यही दिए ना आप लोगों को, राइट, ऐसे ही दिए बच्चे लोग। क्या मैं इधर एप्सिलॉन लिख सकता हूँ और इधर L प्लस एप्सिलॉन लिख सकता हूँ? देखो ये जो पोर्शन लिया, जो इक्वेशन 1 से लिया, जो इक्वेशन 2 से पोर्शन ले लिया, वन वे ऑफ इक्वलिटी एक तरफ से, है ना, ले सकता हूँ ना, कोई परेशानी तो नहीं बच्चा, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। ओके, वी हैव, तो ये आ गया, वी आर वेरी नियर नाउ, ठीक है। दिस इंप्लाइज, तो bn भी तो इसके बीच में ही आ गया ना, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, bn भी तो इस कंडीशन को फॉलो कर गया, नहीं, एंड दिस इंप्लाइज
बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। देखो सैंडविच पूरा रोल किया उसने, देखो दोनों सैंडविच को, दोनों को यूज कर लिया उसने, है ना। तो प्रूव कर लिया, वो दे फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी। तो देखो कितना सिंपल प्रूफ हो गया, एंड दिस इज द कंप्लीट। ठीक है, तो ये पोर्शन उसने इक्वेशन 1 से ले लिया, इक्वेशन 2 से ले लिया। ठीक है, वी हैव दिस इक्वेशन। तो जो इक्वेशन इनक्वलिटी दी है उसी इनक्वलिटी को लिख दी है, और ए एन से पहले एल माइनस एप्सिलॉन आ रहा है, उसके बाद एल प्लस एप्सिलॉन आ रहा है फॉर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो दिस मेक्स अ सिंपल क्वेश्चन। बहुत इजी हो गया। देखो आप कर क्या रहे हो बेसिकली, आपने इफ यू सी, हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, इन ऑल द क्वेश्चंस आर कन्वर्जेंट, वी आर अप्लाइंग द डेफिनेशन अगेन एंड अगेन। सो डेफिनेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। हमने कोई भी क्वेश्चन बिना डेफिनेशन के अभी तक नहीं करा है, राइट, एम आई राइट स्टूडेंट्स। अगेन तो डेफिनेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, दिस एप्सिलॉन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर आपको नहीं आता है तो ये तो आप कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, सो डेफिनेशन मस्ट है। कल हम करेंगे सब सीक्वेंस, सीक्वेंस का सबसेट टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड सब सीक्वेंस, उसके स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 40% यूनिट इज ऑलमोस्ट 40 to 50% आपका यूनिट हो गया है। तो पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ जस्ट। या हाँ जी, मैं चलो, अब आप लोगों ने कुछ पूछना है। आप लोगों में कल पहले भी बोला था, लेटेस्ट का ना थोड़ा बहुत चीजें ना बनाते रहा करो बच्चा, वो जो चीजें आपको बताई गई है ना, रोज ना कोशिश करा करो। आज मैंने इंटीग्रल इंटीग्रल डालना है इसमें, इंटीग्रल डालना है, इसका इंटीग्रल लिखना है, ये एक इक्वेशन ड्रा करनी है। तो धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा, और आप जितना जल्दी सीखोगे आप लोगों को आगे उतना बेनिफिट होगा। ये थोड़ा लाइफ काम आने वाला है। किसी ने किया में से, एनी स्टूडेंट? बच्चा वो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग फॉर्म में पड़े हुए हैं हमारे पास, यू कैन अगेन लिसन दोज लेक्चर्स। ठीक है, वो जहाँ पे मैंने आपको अपना यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ ना कई बार लेक्चर का, तो उसमें उसी में मैंने वो लिंक सारे लेक्चर सेव करके रखे हुए हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप दोबारा सुन सकते हो, राइट। तो उसमें जो फाइल होती है ना जो शुरू वाली, वो आप एक रेडीमेड फाइल ले लो बनी बनाई। आप लोग ना सेकंड डे आप लोगों की अटेंडेंस कम थी, सेकंड डे लेक्चर था वो ऑनलाइन, उसने एक साइट का दिया हुआ एड्रेस ओवरलीफ, आप उसी पे जाके ओवरलीफ में जाओ, उसी में रजिस्टर करो, अपने जीमेल से कर लो। उसमें ऑनलाइन आपको टेम्पलेट बने हुए मिलेंगे अपने नाम से, मतलब नाम से भी किसी के, तो वहां पे आप अपना नाम लिखिए, नीचे अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए, आप खुद वहां पे इतना अच्छा कर पाओगे। ठीक है, बट ये कभी टाइम मिलता है ना, ऐसी चीजें करनी चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक से ना अपनी ये चीजें कंस्ट्रक्टिव है, तो जितना जल्दी आप लोग अडॉप्ट करोगे ना, आप लोगों को उतना बेनिफिट होगा बच्चा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर के बच्चे तो 10-10 पेज टाइप कर चुके हैं 3-4 दिन में, दे आर डूइंग गुड। उनको तो चलो नीड है, लेकिन आप लोग भी सीख लो तो बेटर रहता है, और लाइफ टाइम ये काम आता है। अदरवाइज आप मैथमेटिक्स की टाइपिंग घर में नहीं कर सकते। जो आपने पढ़ा होता है ना, आप इसी को टाइप करने की कोशिश कर लिया करो। कोई एक क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन टाइप करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता है, तो ट्राई टू डू लाइक दैट। एनी अदर क्वेश्चन? बाकी क्लासेस ठीक चल रही है आप लोगों की? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? अब एक ही प्रॉब्लम है ना,
फाइनल एग्जाम कैसे होने हैं, माइनर एग्जाम कब होने हैं, है ना। माइनर एग्जाम ले लेंगे हम आपको। आज क्या तारीख है? बस नेक्स्ट 7 को बता दिया, 10 दिन पहले आपको। 7 को आपका एग्जाम शुरू कर देंगे हम, ठीक है। 10 days बिफोर, ठीक है। तो इसलिए बाकी टीचरों को नहीं पूछना बार बार, मैंने बता दिया, हम डेट शीट डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एग्जाम के लिए फर्स्ट यूनिट की तैयारी करो। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से टफ होते हैं। अगर आप, वो वही कर पाएगा जिसको नॉलेज होगी, जिसको समझ होगी, जिसको अपने कंसेप्ट अप्लाई करना आते होंगे। अदरवाइज ये 10-12 नंबर लेके पास होके तो फायदा नहीं है ना इधर। इसे अच्छे पेपर करिए, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया आप लोगों का? वो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे ना आप लोगों के? ऐसे आप लोगों को पता ही है ना, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के वो तो आप कंसर्न टीचर से पूछ सकते हो जो है। रिजल्ट तो चलो आ जाएगा, तो बस पैटर्न आपको मालूम, आपने पहले भी एग्जाम दिए हैं, तो बस उसी तरह का पैटर्न है, कोई इशू नहीं। हाँ, चलो। पर पढ़िए बच्चा, अगर कुछ करना है तो ये तो लॉकडाउन है, यू आर द सफरर बेसिकली। इसलिए पढ़िए, चीजों को सीखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखो, नेट का एग्जाम वही क्वालिफाई कर सकता है बच्चा जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी होगी। जो एक्सरसाइज हम दें वो साथ साथ निकालें, जो बुक से भी कोशिश करें, मैं एक दो एक्सरसाइज जो सर ने पढ़ाया है इसके रिलेटेड एक्सरसाइज बुक से भी सॉल्व करो, ठीक है। जो आपको दिया है रेडीमेड मटेरियल, उस रेडीमेड मटेरियल को आप तैयारी करके एग्जाम देने आते हो, उसका बेनिफिट नहीं होता आगे। और अगर आप लोग एमएससी के टाइम नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिलने में इजीनेस हो जाएगी, नंबर एक। और पीएचडी जब एडमिशन मिलेगा तो यू विल गेट फेलोशिप। फेलोशिप एक। दूसरा, आप एमएससी के दौरान भी किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और फेलोशिप जो मिलेगी तो 35 to 40 thousand पर मंथ मिलती है पढ़ने के लिए सिर्फ, ठीक है, आप लोगों को। और दिस इज जस्ट लाइक ए पे ऑफ ए टीचर। तो पढ़ने के पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, इससे बढ़िया और कोई स्कीम नहीं हो सकती बच्चा आप लोगों के लिए। ये धीरे धीरे पैसे बढ़ जाते हैं, फिर कंटीजेंसी ग्रांट होती है, हर साल 50,000 रुपया मिलता है बुक्स खरीदने के लिए, नोट्स के लिए, पेपर खरीदने के लिए, फोटो स्टेट करने के लिए, सब कुछ मिलता है। इवन आप बाहर भी जा सकते हो कॉन्फ्रेंसिस में, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, बहुत कुछ मिलता है। बट आप लोगों में काबिलियत होनी चाहिए बस, ऐसे नहीं होगा। काबिलियत बहुत जरूरी है, उसके लिए जो है आप कोशिश, मैंने बोला, इसी अभी से हैबिट डाल लीजिए। जो भी आपके टीचर पढ़ाते हैं, आपके पास एटलीस्ट एक बुक होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, बुक मस्ट है। सेल्फ स्टडी साथ साथ करनी चाहिए। जो आपका बुक है उससे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमें सॉल्व करनी चाहिए। प्रॉब्लमें अगर सॉल्व कर पाओगे तो समझ लेना आप कुछ सीख रहे हो। बाकी जो हमने सॉल्व करके दी वो करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमने नहीं दी है और आप कर रहे हो ना, इट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है। जिस जिस सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, जो याद रखना मेरी बात, जब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी आप एक्सेप्शनल नहीं बन सकते, आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आपका कौन कौन सा कोर्स चल रहा है? एक डिफरेंशियल क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, रियल एनालिसिस, लॉजिक सेट थ्योरी एंड डिफरेंशियल क्वेश्चन, है ना। बस, और कोई नहीं है। तो देखो, लॉजिक सेट थ्योरी चलो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी है, आप वहीं से कंसेप्ट डिग्री निकालना वो निकालना सीख सकते हो। इसमें आपका मेन सब्जेक्ट इस वक्त रियल एनालिसिस ही है, जो आपका काम का चल रहा है, जो बेसिक, जो लॉन्ग रन में चलने वाले कोर्सेज में है, ठीक है। इसलिए रियल एनालिसिस की एटलीस्ट एक बुक मैंने आपको रिकमेंड करी भी थी,
बाकी हमने अपनी भी बुक्स लिखी है बच्चा, हम वो रिकमेंड नहीं करते आपको। हम वो बुक रिकमेंड करते हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आए। अदरवाइज तो रियल नेसी के ने खुद भी बुक लिखी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको 1 साल ही काम आएगी। जो मैंने अच्छे ऑथर की बुक बताई है, जो हमने भी पढ़ी है, काफी लोग पढ़ते हैं, और आपको लाइफ टाइम काम आएगी वो बुक, एस सी मलिक एंड अदर्स। ठीक है, तो इसलिए स्टैंडर्ड की बुक की अभी से पढ़ने की आदत डालोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। बुक लेके घर में भी नहीं रख देना, उससे भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, तो आई क्लोज दिस मीटिंग। थैंक यू।